is franchise? जी बेटा, what is franchise? Any idea? Can you explain? सर जब एक सेपरेट इंडिविजुअल आपका ब्रांड इमेज और ब्रांड इस्तेमाल करके प्रोडक्शन करता है। ठीक है, प्रोडक्शन करता है। Anyone else? जी बेटा, अरीबा, मानिया, उमामा, सुहेब। When one business issue license of its business, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह यू हैव द कॉन्सेप्ट। आज ब्रेक डाउन करते हैं। फ्रेंचाइज का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट टेक्निकल है और थोड़ा सा डिफरेंट है व्हाट यू नो अबाउट। हम इसको डिटेल में पूरा डिस्कस करेंगे एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ बोथ। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड कि फ्रेंचाइज के अंदर दो इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व होंगे। वन इज नोन एज फ्रेंचाइजर एंड द सेकंड वन इज नोन एज franchisee. Now, what is the difference between franchisor and franchisee? Franchisor is an individual who sells. A person who sells the franchise is known as franchisor. And who is franchisee? Franchisee is one who buys the franchise. अब how franchise work and all, देखें हमारे पास क्या है कि let's look at the structure। और बहुत सारे ऐसे businesses होते हैं जो कि international franchises यूज करते हैं। जैसे for example we have KFC, McDonald's, we have number of businesses जिनकी international franchising है and they issue franchise to the international individuals and to the different economies. So franchise can be used as one of the growth strategy, क्योंकि growth हमारे पास एक objective होता है and growth is one of the objectives that usually set by the private sector businesses. So before profit maximization or before getting skyrocket profit, businesses usually set growth as one of the objectives that they want to expand, they want to increase their scale of operation or they want to increase their business size. So जब वो business size और scale of operation में increase करते हैं, so they have multiple options. They can enter into the new market or they want to, or they can develop a new product. ठीक है, तो इसी तरीके से by issuing a franchise, they can also attain or achieve a growth of objective of growth. So franchising can be used by the individuals or by the businesses in order to expand their scale of operation or in order to achieve the objective of growth. So franchise के अंदर हमेशा दो individuals involved होंगे, एक होंगे franchisor, एक होगा franchisee. So be clear कि franchisor is the person who sells the franchise. So it means कि franchisor को मैं consider करूँगा कि franchisor is known as the original owner या फिर franchisor is a person who is authorized. ऑथोराइज पर्सन होगा जिसके पास राइट होगा कि वो सेल कर सकता है फ्रेंचाइज को। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं जाऊँ मार्केट के अंदर और मैं कहूँ कि मैं KFC की फ्रेंचाइज सेल करूंगा, सो इज देयर एनी रिलायबिलिटी कि मैं किस बेसिस के ऊपर फ्रेंचाइज इशू कर रहा हूँ? क्या KFC को मैं ओन करता हूँ? क्या KFC मेरा ब्रांड नेम है या आई एम बिहाइंड द ब्रांड नेम ऑफ KFC? नो। तो हमेशा याद रखिएगा कि फ्रेंचाइजर इज द ओरिजिनल ओनर और he has the authority or he is known as the authorized person who has the right to sell the franchise, to issue the franchise. So for example, खाड़ी जो है, खाड़ी हमारे पास ब्रांड है और खाड़ी का जो ओनर है, he has the right to issue the retail outlets to the individuals or to the potential investor. So person who has the authority and who is known as the original owner has the right and authority and can sell the franchise to the individuals. Who is franchisee? Franchisee is a person who buys. So why he buys? Because he is known as the potential investor. But now, Simna, when it comes to the potential investor, sir, what do you mean by the word potential investor? A potential investor is a person who has finance and who wants to invest against the profit. So a person has multiple options in the market. For example, if you have 5 million rupees or 50 lakh rupees simply, so you have multiple options. You can invest in cryptocurrency, you can invest in stock market, you can set up your business, you can enter into the partnership agreement. So this is how you have an option of becoming a franchisee as well. You can buy a franchise of a particular running business as well.
और हमेशा याद रखिएगा कि फ्रेंचाइज उसी बिजनेस की होती है विच हैज़ अ ब्रांड नेम, विच हैज़ अ स्ट्रॉन्ग होल्डिंग इन द मार्केट, विच हैज़ अ ब्रांड इमेज एंड कस्टमर बेस इन द मार्केट। हर कोई पर्टिकुलर बंदा जो है वो फ्रेंचाइज इशू नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि हमारे पास एक रेपुटेड एरिया है और वेल डिफाइंड एरिया, उसके अंदर एक बारबेक्यू वाला है, ठीक है, नॉर्मली बारबेक्यू वाला है जो कि एक लोकल बिजनेस है, तो क्या वो फ्रेंचाइज इशू करेगा? हाँ, ही इज विलिंग टू इशू द फ्रेंचाइज, बट नो वन इज willing to buy the franchise because that particular business does not have any market recognition and brand image. तो हमेशा अब business which has brand image and brand name has the right or uh, has the power to issue the franchise because willingness of the potential investors to buy that particular business only. So a potential investor is known as a person who has the financial ability. नाउ फाइनेंशियल एबिलिटी का मतलब क्या है कि हु हैज फाइनेंस। अब जब इसके पास फाइनेंस है तो इसका मतलब सिंपली ये हुआ कि वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। वो क्या कर सकते हैं? इन्वेस्ट कर सकते हैं मल्टीपल ऑप्शंस और ही कैन अवेल मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज। सो बिकमिंग अ फ्रेंचाइजी इज वन ऑफ द ऑप्शन दैट ही कैन चूज। सही है। So becoming a franchisee is one of the option that a person or a potential investor choose. अब वो क्यों चूज करता है? Why he wants to become a franchisee? What are the advantages of buying the franchise? वो later on. Up now, let's break down the definition of franchise. What is franchise? Franchise is a legal right given by the franchisor to the franchisee to use the product and the brand name against the financial reward or return. Simply, this is the complete sound definition of the term franchise. So, for example, if you examiner asks you in paper one section A to define the term franchise, so this is how you are going to define it, and this is the complete sound definition of the term franchise. So let's break it down. फ्रेंचाइज क्या है? एक लीगल राइट है। लीगल राइट का मतलब क्या है कि देयर विल बी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन। वहाँ पे क्या होगी? प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होगी, लाइसेंसिंग होगी और लीगल राइट दिया जाएगा किसकी तरफ से? फ्रेंचाइजर हु इज known as the authorized person and who is known as the original owner of the product or the business. किसको दिया जाएगा बेटा? फ्रेंचाइजी को, who is willing and who is known as the potential investor to invest and he is willing to invest to use the product and the brand name of the franchisor against the financial return. क्या मतलब हुआ इसका? कि फ्रेंचाइज जो है वो इट्स एन एग्रीमेंट बिटवीन फ्रेंचाइजर एंड फ्रेंचाइजी in which they both agrees. Franchisor gives the right to issue or to use the product and the brand name of the franchisor. कि मेरा प्रोडक्ट और मेरा ब्रांड नेम यूज करो, मेरे प्रोडक्ट को सेल करो, मेरे प्रोडक्ट के नाम के साथ सेल करो, मेरे बिजनेस के नाम के साथ सेल करो, लेकिन उसके अगेंस्ट फ्रेंचाइजी नीड्स टू पे द फाइनेंशियल रिटर्न। अब सर फाइनेंशियल रिटर्न का मतलब क्या होता है? फाइनेंशियल रिटर्न का सिंपल मतलब होता है कि प्रॉफिट देना पड़ेगा। कि जो बीइंग अ फ्रेंचाइजी एडवांटेज ले रहा है ऑफ अ फ्रेंचाइजर्स बिजनेस नेम एंड द प्रोडक्ट, उसके अगेंस्ट फ्रेंचाइजी को प्रॉफिट देना पड़ेगा। अब एक चीज को अंडरस्टैंड करिएगा, द थिंग इज, आप एक चीज को फोकस करिएगा कि हम जब मार्केट्स के अंदर जाते हैं तो देयर आर मल्टीपल आउटलेट्स। ऐसे बहुत सारे आउटलेट्स होते हैं जिसका हमें नहीं पता होता कि वो फ्रेंचाइज है। तो पहले तो टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज हैं, जोन वगैरह, उनकी मल्टीपल फ्रेंचाइज। अब तो एप्लीकेशन अब तो बहुत ज़्यादा ईजी है, तो दे हैव लिमिटेड फ्रेंचाइजेज एंड ऑफिसेज इन ऑर्डर टू कट डाउन द कॉस्ट, क्योंकि आप इतने फिजिकल विजिट्स और कम होते हैं। they have application, jazz application and song application, mobile application, so now it's easy to access, to get easy load, credit and all packages and all. लेकिन पहले it was very difficult. तो अब जो ये ऑफिसेज हैं, ये सिर्फ और सिर्फ क्या है कि कोई इंक्वायरी है, कोई क्वेरी है, सिम इशू करवानी है, सिम ब्लॉक करवानी है, तो इसके लिए है। तो पहले क्या होता था? फ्रेंचाइजेस लिखा होता था। तो इसका मतलब क्या है कि a person who has bought this particular outlet is known as the franchisee.
कि जोंग ने इसको इशू करी है फ्रेंचाइज, और ये जो आउटलेट है इज नोन एज द फ्रेंचाइज। तो अब एक चीज को समझिएगा कि ये जो आउटलेट होता है, ये जो शॉप होती है जहाँ पे ऑपरेशंस कैरी आउट हो रहे होते हैं, सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही होती हैं, गुड्स प्रोवाइड किए जा रहे होते हैं, दैट इज नोन एज द फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द फ्रेंचाइज। That is known as the physical structure of the franchise. Actually, जो franchise है, it's an agreement. It's a document. It's an agreement between franchisee and franchisee. ये जो हमारे पास आउटलेट वगैरह है, that is known as the physical structure of the franchise. That gives a proof that this particular outlet is owned by a franchisee, and he is the person who is running the name and the product or the operation of the business. ऑलसे, तो अब प्रोडक्ट और ब्रांड नेम इस्तेमाल कर रहा है कौन, फ्रेंचाइजी, तो उसके अगेंस्ट वो क्या दे रहा है, प्रॉफिट दे रहा है। अब प्रॉफिट कैन बी ऑफ टू टाइप, इट कैन बी फिक्स्ड और इट कैन बी वेरिएबल, दोनों केसेस हो सकते हैं। इट कैन बी फिक्स्ड और इट कैन बी वेरिएबल। अब नाउ लेट्स डिस्कस कि व्हाट इज फिक्स्ड एंड व्हाट इज वेरिएबल। एनी आइडिया बेटा, व्हाट इज फिक्स्ड रिटर्न? जी बेटा, एनी आइडिया व्हाट इज फिक्स्ड रिटर्न? सर वो मंथ के एंड में कोई किसी भी मंथ के एंड में एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी उनको दे दें। एग्जैक्टली एक फिक्स्ड अमाउंट है। तो फिक्स्ड रिटर्न का मतलब क्या है? आई थिंक दैट डजंट चेंज। तो अब वो चेंज कैसे नहीं होती है, क्या कौन से फैक्टर्स की वजह से वो चेंज नहीं होती, आज हम इसको देख लेते हैं। द फिक्स्ड रिटर्न का मतलब क्या है कि अ सर्टेन अमाउंट will be paid by the franchisee to the franchisor। a certain amount का मतलब क्या है कि अमाउंट जो होगी वो फिक्स्ड होगी, फिक्स अमाउंट पे की जाएगी। अब लेट्स टेक एन एग्जांपल। फॉर एग्जांपल, जे डॉट इज अ फेमस ब्रांड, क्लोथिंग ब्रांड, सबको पता है। आपने यहाँ पे आइडेंटिफाई किया मार्केट गैप एंड यू हैव अ बिजनेस प्रपोजल, और आपके पास पैसे हैं, सारी सिचुएशन सारी आपके पास जो है वो फेवरेबल है, यू हैव फाइनेंस एंड ऑल, एंड प्लस जे डॉट इज गिविंग आउट द फ्रेंचाइज इन ऑर्डर टू एक्सपैंड। ठीक है, तो हमारे पास एमटीजे ब्रांड आ गया है, इसी तरीके से लकी सीमेंट सून इज गोइंग टू लॉन्च देयर क्लोथिंग ब्रांड। तो जे डॉट इज गोइंग टू फेस द टफ कंपटीशन, और ऑलरेडी आइडियाज और गुल अहमद और हमारे पास अलकरम हैं। So J dot has identified that we need to expand our business in order to cover or compete with these upcoming businesses. So J dot जो है वो issue कर रहा है franchise, and you have finance and you are interested and willing to buy the franchise. तो आप एग्री हो गए, आप जाने हैं। अब आप जाते हैं तो वहाँ पे एक एग्रीमेंट होता है। अब उस एग्रीमेंट के अंदर ये लिखा हुआ है द रिटर्न विल बी फिक्स्ड, यू हैव टू पे द फिक्स अमाउंट एट द एंड ऑफ द मंथ। तो अब फिक्स अमाउंट का मतलब क्या है कि फॉर एग्जाम्पल मंथ 1 है, मंथ 1 के अंदर आपकी सेल्स होती हैं $1000 की सेल्स है, आपको पे करना है फिक्स $100 फॉर एग्जाम्पल, आपको पे करना है। फिर सेकंड मंथ होता है मंथ नंबर 2, मंथ नंबर 2 के अंदर आपकी सेल्स होती हैं $1500, स्टिल आपको जो रिटर्न पे करना है वो कितना पे करना है, $100। तो ये जो $100 आपका रिटर्न, ये क्या चेंज हुआ, आपकी सेल्स चेंज हो गई, आपकी सेल्स 500 से इंक्रीज हो गई इन मंथ 2, बट स्टिल यू आर पेइंग एज यू आर पेइंग इन मंथ 1। तो $100 आप मंथ 1 में भी पे कर रहे थे, $100 आप मंथ 2 में पे कर रहे थे। तो अब यहाँ पे ये तो फेवरेबल कंडीशन है कि सर मेरी सेल्स ग्रो हो गई, तो $100 इट विल बी इजी फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन टू पे $100। तो लेकिन सिचुएशन फेवरेबल एडवर्ड्स भी हो सकती है, आपके पास रिसेशन आ जाता है, लॉकडाउन की सिचुएशन आ जाती है, ऑफ सीजन आपके पास आ जाता है, क्योंकि क्लोथिंग बिजनेस है तो वेरिएबल वेरिएशन होती है सेल्स के अंदर। तो अगर आप फॉर एग्जाम्पल सेल्स ड्रॉप होकर 500 हो जाती है, तो स्टिल यू नीड टू पे $100। तो इसका मतलब ये है कि जो फिक्स रिटर्न का एग्रीमेंट होता है बिटवीन द फ्रेंचाइजर एंड द फ्रेंचाइजी, उसके अंदर फ्रेंचाइजी को फिक्स अमाउंट पे करनी है, चाहे द फ्रेंचाइजी इज अर्निंग स्काईरॉकेट प्रॉफिट, या फिर सेल्स ड्रॉप हो चुकी हैं, या फिर लॉस हो रहा है, या बिजनेस इज मेकिंग ब्रेक इवन, कुछ भी हो रहा है, फ्रेंचाइजी नीड्स टू पे द फिक्स अमाउंट टू द फ्रेंचाइजर एज ए पार्ट ऑफ द एग्रीमेंट, एज इट इज अ पार्ट ऑफ द एग्रीमेंट। सेकेंड जो रिटर्न है हमारे पास, दैट इज नोन एज वेरिएबल return. Now, what is variable return? First of all, we need to understand what is variable. Variable का मतलब होता है I think that changes, that varies. अब कोई चीज़ अगर change होती है, vary होती है, तो for example, there are number of things that varies. Weather, climate change होता है हमारे पास, इंसान का mood change हो रहा होता है, तो इसी तरीके से variable return है।
सर वेरिएबल रिटर्न का मतलब क्या है? वेरिएबल रिटर्न का मतलब हो गया फॉर एग्जांपल परसेंटेज ऑन सेल्स revenue. Now, what is percentage on sales revenue? Percentage on sales revenue, sir, for example, 10% of sales. सर 10% तो फिक्स हो गया कि हम 10% पे कर रहे हैं। बेटा हम किस चीज के ऊपर पे कर रहे हैं? हम सेल्स के ऊपर पे कर रहे हैं। 10% ऑफ आवर सेल्स। तो सेल्स हमारे पास एक ऐसा फैक्टर है जो कि क्या है? वेरिएबल है। सेल्स हमेशा सेम रहती है नहीं, कांस्टेंट रहती है। सेल्स हमेशा हमारे पास इन्फ्लुएंस होती है बाय द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, रिसेशन, लॉकडाउन, इकोनॉमिक पोजीशन, इकोनॉमिक डाउनटर्न, सीजन, टेस्ट, फैशन, ये सारी चीजें जो है वो अफेक्ट करती हैं सेल्स ऑफ योर प्रोडक्ट। तो अब अगर फॉर एग्जांपल वेरिएबल सेल्स है तो हमारे पास तो परसेंटेज भी वेरी करेगा। लेट्स लुक एट दिस। फॉर एग्जांपल अगेन मंथ 1 है एंड द एग्रीमेंट इज कि आप परसेंटेज पे करेंगे ओवर द सेल्स। तो आपकी सेल्स में $1000 एंड यू नीड टू पे 10%। तो इसका आंसर क्या आ रहा है? $100। तो मंथ 1 के अंदर आप कितना पे करें? $100। मंथ 2, सही है, मंथ 2 है फॉर एग्जांपल रमजान का। अब रमजान के अंदर आपकी सेल्स होती है पीक पे बिकॉज यू आर रनिंग अ क्लोथिंग बिजनेस, ठीक है, और आप शलवार कमीज और ट्रेडिशनल कल्चर क्लोथ्स बनाते हैं जो कि ईद के अंदर नमाज के लिए और उसके लिए बाय किए जाते हैं। तो आपकी सेल जो है वो मैक्सिमम पे पहुंच जाती है और पीक पे पहुंच के यू हैव अर्न एंड यू हैव जनरेटेड $5000। तो सेल्स $5000 की है तो उसका 10% कितना हो गया? नाउ 10% उसका हो गया 500। तो मंथ 1 के अंदर आपने पे किया था $100 एज अ रिटर्न एंड इन द मंथ 2 यू आर पेइंग $500 एज अ रिटर्न। तो इसका मतलब क्या है? आपकी रिटर्न क्या हो गया? चेंज हो गया। तो परसेंटेज तो फिक्स होती है, दैट इज 10%, बट इट इज अप्लाइड ऑन द सेल्स रेवेन्यू व्हिच इज वेरिएबल, जो कि इन्फ्लुएंस और चेंज होता रहता है। तो आई होप इट्स क्लियर। तो फिक्स रिटर्न, वेरिएबल रिटर्न, कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रेंचाइज, सब कुछ क्लियर हो गया होगा। जी बेटा, आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन। अरीबा, मानिया, अहमद, सार, सलमान, सुहेब, उमैमा, उस्मान। Yes, sir. एग्जैक्टली Yes, अगर sir. सेल्स ड्रॉप होगी तो आपका रिटर्न भी लो हो जाएगा। वेरिएबल के अंदर हमारे पास यही बेनिफिट है कि जितनी सेल्स है उसके ऊपर है। सो इफ यू आर जनरेटिंग हायर सेल्स यू नीड टू पे हायर रिटर्न टू द franchisor, and if there is dent in sales and you are generating less sales, so you have to pay less return to the franchisor. आ जाए। सो वी आर डन विद द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रेंचाइजिंग। अब हम कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रेंचाइज, सॉरी, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं why to buy franchise। why to buy franchise का मतलब क्या है कि simply we are considering the advantages to the franchisor or franchisee, to the franchisee, क्योंकि franchisee is an individual who buys the franchise. So what are the possible advantages to a franchisee if he buys the franchise of a business? Also, तो क्या क्या advantages हो सकते हैं according to you from the perspective of the franchisee? सर एक ब्रांड पहले से एस्टेब्लिश्ड होता है तो उसके फेल होने के चांसेस कम होते हैं। Exactly. हमारे पास जो है इसके अंदर देखिएगा ब्रांड नेम, ब्रांड इमेज, customer base is already established। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है ब्रांड नेम, ब्रांड इमेज, कस्टमर बेस इज ऑलरेडी एस्टैब्लिश। इसको हम डिस्कस करते हैं। आप जिसकी फ्रेंचाइज बाय कर रहे हैं तो आप भी तो रिस्क के एलिमेंट को मेजर कर रहे हैं ना, कि अगर फॉर एग्जांपल इफ यू बाय द फ्रेंचाइज ऑफ KFC, a most reputed fast food chain company, और इफ यू बाय द फ्रेंचाइज ऑफ मैकडॉनल्ड्स, उसको अगर आप कंपेयर करें विद द लोकल बिजनेस और लोकल फास्ट फूड, तो उसके अंदर चांसेस क्या है कि आपका रिस्क उसके अंदर ज़्यादा है लोकल वाले के अंदर। और ये जो KFC मैकडॉनल्ड्स है उसके अंदर रिस्क क्या है? मिनिमाइज है, रिस्क मिनिमम है। तो आप हमेशा किस चीज़ के फ्रेंचाइज बाय करेंगे? जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश ब्रांड नेम बिजनेसेस हैं, जिनका ऑलरेडी मार्केट के अंदर नाम है, ठीक है।
Plus, they have brand image because they are expanded. There are multiple franchises and they are operating at the national level or they are operating at the international level. So already जो इनकी image है amongst the consumer in the market वो high है. And plus, these businesses does not want to struggle, do not want to struggle, or plus these businesses does not require to build customer base because already customer base is built. Everyone knows KFC, McDonald's, तो already customer base built है. तो अगर मैं इसे compare करूँ with the sole trader business or a newly startup business which does not have any stability, brand name, brand image, so it will be quite difficult for them to build the customer base at the initial stage because no one in the market is going to trust them. तो अब फायदा हमारे पास ये होगा कि कस्टमर बेस ऑलरेडी बिल्ड है, सो देयर विल बी नो नीड टू फैच कस्टमर. हम जहाँ जाके ऑपरेट करेंगे वहाँ पे नए कस्टमर्स को हम टारगेट करेंगे, बट वो जो एक फ्रॉम दी स्क्रैच स्ट्रगल होती है जो कि न्यूली बिजनेसेस, सोल ट्रेडर बिजनेसेस करते हैं, वो हमें नहीं करनी होगी. तो दिस इज वन ऑफ द मेजर एडवांटेज ऑफ बिकमिंग अ फ्रेंचाइजी. सेकंड, नो मार्केटिंग कॉस्ट. नो मार्केटिंग कॉस्ट का मतलब क्या है? व्हाट टाइप ऑफ मार्केटिंग? नेशनल मार्केटिंग. इस चीज को अंडरस्टैंड कर लेगा क्योंकि अक्सर जो लोग समझते हैं मार्केटिंग कॉस्ट का मतलब होता है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ मार्केटिंग, नेशनल एंड इंटरनेशनल, नेशनल एंड लोकल. नो नेशनल मार्केटिंग कॉस्ट. व्हाट मीन द वर्ड नेशनल मार्केटिंग? इस चीज को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करिएगा, थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट है. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स सपोज दैट यू आर द फ्रेंचाइजी ऑफ KFC, ठीक है, and you own a franchise of KFC in well-defined area. For example, let's take an example, North नाज़िमाबाद के अंदर आप जो है franchise आप. तो अब यहाँ पे KFC is introducing a new deal or introducing a new meal in पाकिस्तान. और पाकिस्तान के अंदर हर जगह वो इशू, हर जगह वो लॉन्च होगा. लाहौर, फैसलाबाद, इस्लामाबाद, कराची, जहाँ जहाँ KFC ऑपरेट कर रहे हैं, इन दी वेल रेप्यूटेड सिटीज ऑफ पाकिस्तान. तो अब जब उन्होंने यहाँ पे नई डील लॉन्च करी है तो नई डील की एडवर्टाइजमेंट होगी थ्रू आउट पाकिस्तान. KFC is going to use national media. They are going to use KFC Pakistan pages on social media. They are going to use billboards throughout the cities. ठीक है. और तो अब ये जो मार्केटिंग हो रही है नेशनल लेवल पे हो रही है, इट इज कवरिंग ऑल द सिटीज वेयर KFC इज ऑपरेटिंग. तो अब ये जो कॉस्ट होगी वो क्या होगी? एक्सपेंसिव होगी. बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पे मार्केटिंग हो रही है, मेगा लेवल पे मार्केटिंग हो रही है, सो ऑब्वियसली इट इज़ एक्सपेंसिव एंड इट इज़ कॉस्ट इफेक्टिव. तो इसका जो बर्डन होता है इट विल बी फेस्ड बाय द फ्रेंचाइजर, नॉट द फ्रेंचाइजी. सो दिस इज नोन एज वन ऑफ द एडवांटेज कि आपको मार्केटिंग नहीं करनी पड़ती, नेशनल मार्केटिंग. यू आर ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोकल मार्केटिंग जहाँ पे आप ऑपरेट कर रहे हैं, जहाँ पे आपकी फ्रेंचाइज है, तो फ्रेंचाइज की और जिस लोकेशन पे आप ऑपरेट कर रहे हैं उसमें वहाँ पे आपको सिर्फ क्या करनी है? एडवर्टीजमेंट एंड मार्केटिंग करनी है. सो ये एक हमारे पास एडवांटेज है. थर्ड, नो लेबर ट्रेनिंग कॉस्ट बिकॉज द कॉर्पोरेट कल्चर इज सेंट्रलाइज्ड. हम देखते हैं, हम जहाँ भी जाते हैं KFC के अंदर सेम यूनिफॉर्म होता है, सेम कलर थीम होती है. सो इट मीन्स जितने भी ये बिजनेसेस हैं, दोज हु इशू फ्रेंचाइज, दे हैव द सेम कॉर्पोरेट कल्चर इन देयर ब्रांचेस और इन देयर फ्रेंचाइजेस. तो लेबर की जो ट्रेनिंग होती है वो भी फ्रेंचाइजर प्रोवाइड करता है. फ्रेंचाइजर टीच दैम हाउ द ऑर्गेनाइजेशन वर्क्स और व्हाट इज द ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, कॉर्पोरेट कल्चर, मैनेजमेंट स्टाइल एंड ऑल. तो ट्रेनिंग की जो लेबर ट्रेनिंग कॉस्ट होती है वो भी फ्रेंचाइजर को बेयर नहीं करनी पड़ती बिकॉज फ्रेंचाइजर इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रोवाइड द ट्रेनिंग टू द स्टाफ. सो अगेन दिस इज वन ऑफ द फाइनेंशियल एडवांटेज टू द फ्रेंचाइजी. थर्ड, फोर्थ, सॉरी, नो research and cost. Now, what is research and development cost? Any idea, Umaima, Suhaib, Salman, Saad, Mania, Ariva? I want you to participate. Research and development cost क्या? R&D, मतलब अपना प्रोडक्ट डेवलप करना, Research वो and- साथ में नहीं होता. देखिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट क्या होती क्या है? इट इज द कॉस्ट. अच्छा, ये मार्केट रिसर्च और ये वाली कॉस्ट नहीं है. It is the cost that is associated to the product and it is the cost that is associated to the process. अब एक चीज तो क्लियर है ना कि वी आर द फ्रेंचाइजी एंड वी आर जस्ट यूजिंग द प्रोडक्ट ऑफ द फ्रेंचाइजी. वी आर नॉट मैन्युफैक्चरिंग एंड वी आर नॉट प्रोसेसिंग और वी डू नॉट हैव द ऑपरेशनल प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ प्रोडक्ट.
We are just the face of the franchisor who are selling the product of the franchisor by using his brand name. तो प्रोडक्ट किसका है? फ्रेंचाइजर का. तो ऑब्वियसली प्रोसेस भी किसका होगा? फ्रेंचाइजर का. So if the business wants to bring an innovation into the product, they want to develop a product or they want to bring efficiency in their processes, innovation in the processes. So it's a responsibility of the franchisor to spend on the research and development in order to develop a product or in order to make the process efficient. Franchisee is not responsible, or franchisee does not have to face the cost of this research and development. So this is again one of the advantage. जी बेटा, और कोई advantage? Any advantage? सर वो फ्रेंचाइजी उसको मैनेजमेंट की हेल्प मिलती है फ्रेंचाइजर से, है ना? हाँ, इसके अंदर हम इस तरीके से देख सकते हैं कि असिस्टेंस experience from franchisor. This can be one of the advantage. जैसे कि अगर मैं ऐसे कंपेयर करूँ विद सोल ट्रेडर, जो कि आपके पास पेपर का एक क्वेश्चन भी है जो कि हम करेंगे इसके बाद, उसके अंदर ये चीज़ थी कि अगर आप कंपेयर करें सोल ट्रेडर को कि एक एंटरप्रेन्योर उसके पास दो ऑप्शन है, बिकमिंग अ सोल ट्रेडर और बिकमिंग अ फ्रेंचाइजी. तो एडवांटेजेस क्या है और उसको क्या करना चाहिए, क्या चूज करना चाहिए. तो आप देखेंगे कि बाय बिकमिंग अ सोल ट्रेडर यू आर फर्स्ट टाइम एंटरिंग इनटू अ मार्केट और यू आर सेटिंग अप अ बिजनेस. So you have lack of experience. You do not know how the market works, what is the customer behavior, market position, amount of competition. ये सारी चीज़ों के बारे में नहीं है पता आपको. So lack of experience is one of the thing that makes the business fail. तो यहाँ पे तो आपको सारा कल्चर, प्रोडक्ट, ब्रांड नेम, हाउ द बिजनेस मैनेजेस, किस तरीके से बिजनेस को रन करना है, डिसीजन मेकिंग, सारी की सारी किसके फ्रेंचाइजर की. सो ऑटोमेटिकली यू आर नॉट स्टार्टिंग फ्रॉम द स्क्रैच, आपको तो सपोर्ट मिल रहा है. सो दिस व्हाई दिस इज नोन एज वन ऑफ द एडवांटेज दैट यू गेट असिस्टेंस एंड एक्सपीरियंस फ्रॉम द फ्रेंचाइजर. ऑल सेट. और कोई हमें आएंगे, हम आगे देखेंगे एडवांटेजेस. अब आ जाए व्हाई नॉट टू बाय फ्रेंचाइज. तो इसका मतलब क्या है कि वी आर गोइंग टू कंसिडर द डिसएडवांटेजेस टू द franchisee of becoming a franchisee or buying a franchise. What are the possible disadvantages? Basic सबसे disadvantage मैं लिख देता हूँ ताकि आप लोग ना बताएं. That is profit sharing. कि प्रॉफिट शेयर करना पड़ेगा हमें, जो हम प्रॉफिट अर्न करेंगे और मेरी फ्रेंचाइज जो अर्न करेगी, इट विल बी डिवाइडेड बिटवीन फ्रेंचाइजर एंड मी. और क्या डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं? सर जो एक फ्रेंचाइज पे जो आप लीगल राइट लेते हैं वो कॉस्टली हो सकता है. हमारे पास हाँ, legal formalities and licensing cost. लीगल फॉर्मेलिटीज एंड लाइसेंसिंग कॉस्ट का मतलब क्या है कि आप जो एग्रीमेंट कर रहे हैं और जो लाइसेंस आपको इशू किया जा रहा है फ्रॉम द फ्रेंचाइजर, तो उसकी पूरी फीस होगी, उसका एक जो प्रोसेस होगा. तो यू हैव टू गो थ्रू दिस प्रोसेस एंड यू हैव टू फेस द कॉस्ट ऑफ दिस प्रोसेस. तो इट विल बी द फाइनेंशियल कॉस्ट व्हिच विल बी बेयर बाय द फ्रेंचाइजी, नॉट द फ्रेंचाइजर. So this is one of the disadvantages of becoming a franchisee, that you have to face the legal formalities and the licensing cost. और बेटा, no self recognition. Now what is no self recognition? No self recognition का मतलब क्या है कि you are using the product of the franchisor, you are using the brand name of the franchisor. No one knows you. जैसे फॉर एग्जांपल हमें तो नहीं पता, हम तो स्पीड स्पोर्ट्स पे जाते हैं, तो स्पीड स्पोर्ट्स जो है वो किसका है, पीछे कौन है, हमें नहीं पता. हम जाते हैं KFC की फ्रेंचाइज किसी ने ली हो, हमें तो नहीं पता. तो हमें क्या पता है? फ्रेंचाइजर का ब्रांड, हम किसका प्रोडक्ट यूज करें? फ्रेंचाइजर का. तो देयर इज नो सेल्फ रिकग्निशन, कि उसके पास कोई रिकग्निशन नहीं है कि बाय बिकमिंग अ फ्रेंचाइजी यू डू नॉट हैव एनी सेल्फ रिकग्निशन इन अ मार्केट. तो आप बस ऑपरेट कर रहे हो, तो यू आर जस्ट द रिप्रेजेंटेटिव or you are the face of the franchisor's product and the brand name.
So there is no self recognition. लेकिन अगर आप sole trader से start करें, so business will be dependent on you, and business identity will be faced by you, and you are the face of your business. So that's a different thing. तो दिस इज वन ऑफ द इशू जिसकी वजह से लोग अपना स्टार्टअप भी लेते हैं, क्योंकि आप किसी और के उस पे, उसकी और के फेस पे, किसी और के ब्रांड पे या किसी और के प्रोडक्ट पे अर्न कर लेते हैं. So no self recognition is one of the disadvantage that franchisee, no one knows the franchisee, no one knows who is behind this particular franchise. Consumers visit, customer visit because of the franchises, brand name and the product. सही है. Centralized making. Centralized decision making का मतलब क्या है? Now what is centralized decision making? The right of taking the decision, the authority, power of taking the decision is in the hand of the franchisee. So franchisees invest, वो पैसा लगा रहा है, वो कंस्ट्रक्शन कर रहा है, वो फ्रेंचाइजर के प्रोडक्ट को यूज कर रहा है, but he does not have any right to participate in the decision making. So decision making is centralized. The franchisor has the power over all the franchises to take the decision. So centralized decision making का मतलब ये हुआ कि this is one of the drawback that you do not own actually, but you have faced the cost, and you are running a business, you are running a franchise, but there is no involvement of you in taking the decision. So this is one of the disadvantage. लेकिन अगर आप compare करें with the other legal structure, sole trader and partnership, or if you set up your own business, so you are the owner plus you are the controller of your business. The decision making power is in your hand, either to take the decision or not, and all सारी चीजें आपके पास. So centralized decision making is another disadvantage of becoming a franchise. Anyone else? Or सेटअप कॉस्ट. नाउ व्हाट इज सेटअप कॉस्ट? सेटअप कॉस्ट का मतलब ये है कि जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट होगी इनिशियल, हमारे पास जगह, रेंट एंड ऑल, तो सेटअप कॉस्ट जो होगी इट विल बी फेस्ड बाय द फ्रेंचाइजी. तो जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है और ये सारी चीजें वो कौन फेस कर रहा होगा? वो फ्रेंचाइजी. सो इट रिक्वायर्स हाई अमाउंट ऑफ कैश आउटफ्लो, इट रिक्वायर्स हाई अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट. ये सारी चीजें कि आप जगह खरीद रहे हैं, रेंट पे ले रहे हैं, यू आर कंस्ट्रक्टिंग. अगर फॉर एग्जांपल रेस्टोरेंट है तो उसे आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, अगर कोई आउटलेट है तो उसे आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं. तो सेटअप कॉस्ट विल बी फेस्ड बाय द फ्रेंचाइज. सो अगेन दिस इज वन ऑफ द फाइनेंशियल डिसएडवांटेज. और बेटा अच्छा, इसके अंदर एक और चीज भी है. एग्जैक्टली exactly. एक और डिसएडवांटेज, franchisee cannot bring an innovation and develop a product. अगर उसके पास कोई प्रोडक्ट डेवलपमेंट के रिलेटेड आइडिया है, उसके पास इनोवेशन है, so franchisee cannot apply this innovation into a product, or simply he cannot develop a product. So this is one of the issue, this is one of the disadvantage. अच्छा, मैकडॉनल्ड्स का उधर मैं केस पढ़ रहा था, तो उससे आपको शेयर करूं कि सेटअप कॉस्ट के अंदर कि दिस इज नोन एज अ स्मार्ट अप्रोच. मैकडॉनल्ड्स के पास जो दुनिया के अंदर जितनी प्रॉपर्टी है, तो उन्होंने क्या करा हुआ है कि इफ यू वांट टू बिकम अ फ्रेंचाइजी, सो McDonald's will tell you the location के this is the place where we are issuing the franchise, और उस लोकेशन के अंदर they have their property as well. सही है. तो वो वही प्रॉपर्टी आपको रेंट आउट करेंगे, एंड दे आर गोइंग टू बिकम, दे आर द लैंडलॉर्ड एंड यू आर गोइंग टू बिकम अ टेनेंट प्लस यू आर द फ्रेंचाइजी. तो आपको जो है उस पर्टिकुलर लोकेशन पे ऑपरेट करने का रेंट पे करना होगा टू द मैकडॉनल्ड्स, बिकॉज यू आर यूजिंग देयर प्रॉपर्टी. तो उन्हीं की प्रॉपर्टी है जो वो रेंट आउट कर रहे हैं. तो प्लस बीइंग अ फ्रेंचाइजी यू हैव टू पे द रेंट, प्लस दे आर गोइंग टू चार्ज द रिटर्न एज वेल, जो कि कमीशन वगैरह सेल्स पे या फिक्स रिटर्न होगा वो भी. तो हमारे पास कुछ अराउंड जो रेंट रिसीव होता है मैकडॉनल्ड्स को, वो अराउंड 4.2 या 4.3 बिलियन डॉलर्स है पर एनम एनुअली, जो वो कलेक्ट करते हैं फ्रॉम द फ्रेंचाइजेस इन द फॉर्म ऑफ रेंट, नॉट द कलेक्शन ऑफ द प्रॉफिट, इन द फॉर्म ऑफ रेंट. तो ये नॉलेज थी जो कि मैंने आपसे शेयर करी. और कोई पॉइंट आपको याद आता है या समझ आता है? व्हाई टू बाय, व्हाई नॉट टू बाय? Misleading image of franchisor
can harm the franchisee financially. क्या मतलब है? हमारे पास एक चीज है, इस चीज को अंडरस्टैंड, हाँ अरिवना से ये प्राइस सिंग स्ट्रैटेजी और हमारे पास इनोवेशन इनटू आवर प्रोडक्ट, ये सारे डिसीजन मेकिंग के सेंट्रलाइज वाले पॉइंट के अंदर आ सकते हैं. यू कैन इंक्लूड दिस पॉइंट इन द सेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग के प्राइसेस, प्रोडक्ट, टाइप ऑफ अ प्रोडक्ट, all will be set by the franchisor. All set? Okay, sir. A misleading image of franchisor can harm the franchisee financially. इसका मतलब क्या है? कि फॉर एग्जाम्पल इफ देयर इज, मैं आपको इसकी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देता हूँ. हमारे पास अभी ब्लास्ट में इशू हुआ था, जो हमारे पास फ्रांस के अंदर कार्टून कॉन्टेस्ट के अंदर होली प्रॉफिट पीस भी अपॉन है. तो हमारे पास ये जब हुआ था सिनेरियो, तो उसके अंदर मैं आपको लिटरली प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दे रहा हूँ. टोटल पार्को जो है वो फ्रेंचाइज जो है, टोटल पार्को इट्स अ फ्रांस बेस्ड पेट्रोलियम कंपनी. तो टोटल पार्को इज ऑपरेटिंग इन पाकिस्तान एज वेल. पहले कैलटेक्स था, अब नाउ इट्स टोटल पार्को. तो मैं एक लिटरली बंदे को जानता हूँ जो कि ओन करता है पेट्रोल पंप अंडर द नेम ऑफ टोटल पार्को. तो जब ये हुआ तो पाकिस्तान के अंदर लोगों ने जो है वो बाइकआउट करना शुरू कर दिया कि फ्रांस के प्रोडक्ट और फ्रेंच प्रोडक्ट्स को कम्प्लीटली बाइकआउट कर रहे थे. सुपर स्टोर्स ने भी एक्शन लिया था, कंज्यूमर्स भी अपनी तरफ से एक्शन ले रहे थे ऑन सोशल मीडिया, एंड दे हैव इवन स्टॉप बाइंग द प्रोडक्ट. तो जब ऐसा हुआ तो मैंने देखा कि एक बंदा कह रहा है कि यार सेल्स ड्रॉप हो गई. तो टोटल पार्को की सेल्स ड्रॉप हो गई थी बिकॉज इट बिलोंग्स टू द फ्रांस एंड इट इज़ वन ऑफ द फ्रेंच कंपनी. तो इसकी वजह से लोगों ने बाइकआउट करना शुरू कर दिया. तो इसी तरीके से अगर कोई फ्रेंचाइजर से मिस्टेक होती है या फ्रेंचाइजर का नाम खराब होता है, तो नो वन इज गोइंग टू टेक द नेम ऑफ द फ्रेंचाइजी. वो कहेंगे पिज्जा हट पे ये इशू हुआ, KFC के अंदर ये इशू हुआ, सबवे के अंदर ये इशू हुआ. तो जब इस टाइप के इशू होते हैं तो फ्रेंचाइजर को तो लॉस होता ही होता है. लेकिन अगर फ्रेंचाइजर की कोई गलती है तो उसका जो एरर होगा वो पास किया जाएगा और उसकी जो डेंट होगा वो फेस करना पड़ेगा बाय द फ्रेंचाइज. तो उससे फाइनेंशियल लॉस होगा बिकॉज ऑफ द पिज्जा हट. तो नो वन इज गोइंग टू बाय पिज्जा हट. लोग बायकॉट करेंगे पिज्जा हट को, KFC को, मैकडॉनल्ड्स को. तो जो लोग फ्रेंचाइज लेके बैठे हैं उन्हें नुकसान होना शुरू होगा. सो दिस इज वन ऑफ द डिसएडवांटेज ऑफ बिकमिंग अ फ्रेंचाइजी. Anyone else कोई और डिसएडवांटेज, एडवांटेज? जी बेटा, एनी डिसएडवांटेज, एडवांटेज? अच्छा, लीगल फॉर्मेलिटीज एंड लाइसेंसिंग कॉस्ट के अंदर एक पॉइंट और इंक्लूड कर दिएगा कि समटाइम्स वी नीड टू पे अ सिक्योरिटी डिपॉजिट एज वेल, जो कि बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट होती है. जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप जाते हैं, इफ़ यू वांट टू बाय द फ्रेंचाइज और इफ़ यू वांट टू ब्रिंग, हमारे पास ये जो चाय है फीबी है ना, फीबी, फिली इज द ओरिजिनल वन, यूएई के अंदर है. तो दुबई के अंदर फिली चाय है, अगर उसकी फ्रेंचाइज, सो वन ऑफ आवर रिलेटिव अप्रोच दैम और उन्होंने कहा था कि अगर मुझे आपकी चाय लानी, क्योंकि बीच में अचानक से देखा था कि ट्रेंड था बहुत ज़्यादा. तो चाय वाला जो सेटअप था हमारे पास, चाय वाला, छोटी चाय वाला, बहुत सारे ग्रो कर गए, फीबी एंड ऑल. तो उसके अंदर उसने कहा कि व्हाई नॉट टू ब्रिंग एन ओरिजिनल ब्रांड जो कि इन सबको कॉम्पीट करेगा. और लिटरली इट्स वेरी कॉम्पिटिटिव, बहुत अच्छी चाय है उसकी, तो वो कॉम्पीट करता है यहाँ पे. एंड पीपल स्पेंड, कराची स्पेंड एक्चुअली, दे एक्चुअली स्पेंड अलॉट ऑन चाय. तो चाय के होटल पे जो स्पेंड किया जाता है वो भाई एंड है हमें कराची के अंदर. तो अब उसने अप्रोच किया तो दे रिक्वेस्टेड फॉर अराउंड, मेरे ख्याल से शायद 50 लाख या पता नहीं क्या उन्होंने अमाउंट बोली थी, तो उसे कन्वर्ट करके कुछ अराउंड 2.25 CR बन गए थे. मतलब 2 से 2.25 करोड़ रुपए दे वर डिमांडिंग एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट. तो ये जो सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है, तो सिक्योरिटी डिपॉजिट को फ्रेंचाइजर के पास राइट होता है कि वो यूज कर सकता है अगर आप कुछ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करते हो या व्हाट द टर्म्स एंड कंडीशंस आर. तो आप देखें कि इतनी हाई अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड. सो द पोटेंशियल इन्वेस्टर का मतलब ये है कि उसके पास अमाउंट होनी चाहिए.
तो ये ड्रॉबैक है if you want to become a franchisee, so you have a lot of investment and you should have a lot of finance before acquiring a franchise or becoming a franchise. Is it clear, beta? Yes, sir. Okay, beta. Yes. I need a reply from everyone. Yes, sir. Okay, beta. Now take the screenshot. This is page number 1. अब जो हमारी next class होगी, अच्छा, most probably I am going to conduct a class on Saturday as well. ना Saturday को हो सकती है extra class can be conducted on Saturday. It will be informed by me and the management. Okay, beta, now take the screenshot. This is page number 1. सर क्या मंडे से फिजिकल क्लासेस स्टार्ट होंगी? इंशाल्लाह बेटा, इंशाल्लाह उम्मीद यही है कि अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर यही चीज़ कंटिन्यू रही कि गवर्नमेंट के जो स्टांस है वो ये है कि स्टाफ एंड फैकल्टी शुड बी वैक्सीनेटेड 100%, तो अगर ये चीज़ हो गई तो दे आर गोइंग टू स्पैक एंड दे आर गोइंग टू ओपन स्कूल एंड कॉलेजेस इंशाल्लाह. चलिए बेटा, टेक द स्क्रीनशॉट. डन हाँ, मैं सर. लेक्चर 5 का कंटेंट शो कर देता हूँ. एंड दिस इज पेज नंबर 2. डन. अच्छा, लेक्चर नंबर 5 जो था वो हमारा ये था शायद लीगल स्ट्रक्चर, सोल ट्रेडर एंड पार्टनरशिप. जी बेटा स्वेब, टेक द स्क्रीनशॉट. Yes, sir. ले लिया. This is page and this is page number 2. Page 2 भी. जी sir. और पेज नंबर 3 यहाँ तक हम शायद रुके थे, लैक ऑफ कंटिन्यूटी. और ये पार्टनरशिप वाला पेज यहाँ तक हम रुके थे. उसके बाद हमने आगे से स्टार्ट किया. Thank you, sir. ठीक है, ओके, थैंक यू, सी यू ऑल, अल्लाह हाफिज, थैंक यू. Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज़ सर. हाफिज.